آپ کو بتائیں سندھ حکومت کراچی کی روشنیاں بحال کرنے کے لیے متحرک 2000 ملین کراچی کے انفراسٹرکچر پر خرچوں کے وزیر بلدیات سعید غنی نے سندھ اسمبلی میں خوشخبری سنا دی۔ یونین کمیٹیوں اور کونسلز کو جلد گائیڈ لائن دی جائے گی۔ صاف پانی کی فراہمی اور سیوریج کی نکاسی کے لیے بھی اقدامات کا انتظام۔ 1400 ملین جو ہیں وہ سڑکوں کے لیے ہیں، 200 ملین اسٹریٹ لائٹس جو خراب ہوئی ہیں، ڈیمیج ہوئی ہیں بارشوں میں، ان کے لیے ہیں، اور 400 ملین جو مختلف بریجز ہیں ان کے اوپر جو ایشوز آئے ہیں بارشوں کے بعد، یہ اس کے لیے تو یہ تقریباً 2200 کے قریب بنتے ہیں، نہیں 2000 بنتے ہیں، 2000 ملین جو انیشلی کریں گے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر مزید پیسوں کی ضرورت پڑے گی تو چیف منسٹر صاحب نے بڑا کلیئرلی یہ کہا ہے کہ ہم سڑکوں کو ٹھیک کرنے کے لیے اضافی پیسے بھی جاری کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ٹاؤنز ہیں، جو سڑکیں ٹاؤنز کی ہیں اور ان کو ٹھیک کرنا ہے، تو کچھ ٹاؤنز تو ایسے ہیں جو خود ان کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ وہ ان کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن اگر کہیں کسی ٹاؤن کے پاس وسائل نہیں ہوں گے تو میں نے گزارش کی ہے سی ایم صاحب سے کہ ان کو بھی کچھ اضافی فنڈ فراہم کریں تاکہ وہاں جو سڑکیں خراب ہوئی ہیں بارشوں میں ہم اس کو بھی ٹھیک کر سکیں۔ آگے بڑھے اور اب آپ کو بتائیں کہ الیکٹرک کا لائسنس معطل کرنے سے متعلق قرارداد سندھ اسمبلی میں اسپیشل کمیٹی تشکیل دے دی۔ اسپیشل کمیٹی اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت 11 اراکین پر مشتمل ہے، جس کے سربراہ فیاض بٹ ہیں۔ کمیٹی کے الیکٹرک کے سربراہ کو بلا کر شہریوں کو درپیش مسائل کا جائزہ لے گی۔ کمیٹی کے الیکٹرک معاملے کے علاوہ ہیسکو اور سیپکو کی کارکردگی کا بھی جائزہ لے گی۔ کمیٹی کو ایک ہفتے میں رپورٹ اسمبلی میں پیش کرنے کی ہدایت کی گئی۔ آگے بڑھے اب آپ کو بتائیں سندھ اسمبلی کا اجلاس اسپیکر اسمبلی اویس قادر شاہ کی صدارت میں ہوا۔ اجلاس میں 5 توجہ دلاؤ نوٹس اور ایک تحریک استحقاق پیش کی گئی اور محکمہ سوشل ویلفیئر سے متعلق سوالات اور جوابات کا سلسلہ جاری رہا۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے کہا کہ آپ صوبائی وزیر کے چیمبر میں چلے جائیں، وہ آپ کو چائے بھی پلائیں گے اور بسکٹ بھی کھلائیں گے۔ اسپیکر سندھ اسمبلی کی بات پر ایوان کہکوں سے گونج اٹھا۔ مزید تفصیلات جانیں گے خورشید رحمانی کی اس رپورٹ میں۔ سندھ اسمبلی میں گدہ گری کے خاتمے کی گونج، امداد پتافی کے گدہ گری کی روک تھام کے لیے قانون سازی کی تجویز۔ وسیم احمد بولے حکومت کو گدہ گروں کے گروہ کو پکڑنے کے لیے مربوط حکمت عملی بنانا ہوگی۔ میر طارق علی تالپور نے یتیم بچوں کی حفاظت کے لیے شیلٹر ہومز بنانے کا مطالبہ کر دیا۔ کراچی کے سینٹر کے اندر کوئی ہم اور بھی شیلٹر ہوم بنا رہے ہیں، لیکن ہمارا ٹارگیٹ صرف کراچی نہیں ہے، ہمارا ٹارگیٹ پورا سندھ ہے۔ پورے سندھ کے اندر میں ہم یہ شیلٹر ہوم بچوں کے لیے بنا رہے ہیں۔ سوائے کچھ فنڈنگ کی پرابلم کی وجہ سے ہم اس کو انہانس نہیں کر رہے ہیں، لیکن جو بھی ہمیں فنڈنگ ملے گی تو انشاءاللہ پورے سندھ کے اندر یہ ڈسٹرکٹ لیول پر جو بھی ہوگا ہم یہ چائلڈ پروٹیکشن اتھارٹی کے تھرو یہ پورے سندھ کے اندر جو ہمارے ڈسٹرکٹ ہیں ان میں سب کے اندر یہ جو شیلٹر ہوم بنائیں گے۔ توجہ دلاؤ نوٹس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی نے کہا کہ چھوٹے مسائل یونین کونسلوں کو حل کرنے چاہیے، کلرک ادارہ منصوبہ ہے۔ یہ جو چھوٹے مانتا ہوں، یہ جو مینول کورز ہوتے ہیں، اسٹریٹ لائٹ کے چھوٹے ایشوز ہوتے ہیں، یہ جو پیسے ہیں ان پیسوں سے یونین کونسلز، یونین کمیٹیز یہ کام کر سکتی ہیں، اور ہم ابھی تمام کونسلز کو گائیڈ لائنز ایشو کر رہے ہیں کہ یہ پیسے آپ کس مد میں خرچ کر سکتے ہیں۔ صوبائی وزیر ثقافت ذوالفقار علی شاہ نے کرنسی سے موہنجو داڑو کی تصویر ہٹانے کا مسئلہ اٹھا دیا۔ کہا اس سے متعلق وزیر اعلیٰ سے درخواست کے لیے خط لکھوں گا۔ سر، ہمارے جو اسٹیٹ بینک ہے اس نے ہمارا جو 20 روپے کا جو نوٹ ہے ہمارا، اسے جو ہیریٹیج کی اپنا تصویر تھی موہنجو دڑو کی، وہ انہوں نے ختم کر دی۔ سو لہٰذا کیونکہ ایک 5000 سال پرانی تاریخ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ موہنجو دڑو کی پورے ورلڈ میں ایک بہت بڑی ایک سے ہے، تو میں اس ہاؤس کے تحت ان کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ اپنا وہ تصویر واپس آئے۔ پیپلز پارٹی کی رکن سندھ اسمبلی ہیر سوہو نے ٹی ایم او آفیسر دیدار شاہ کے خلاف تحریک استحقاق پیش کی، جس پر وزیر بلدیات نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کی کارروائی کر کے اسے معطل کر دیا اور آئندہ ایسے معاملات نہ پیش آئیں، اس لیے مزید کارروائی کے لیے کمیٹی بنائی جائے گی۔ اسپیکر نے سندھ اسمبلی کا اجلاس بروز پیر 16 ستمبر کی دوپہر 12 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین شکیل خان کے ساتھ خورشید رحمانی، سٹی 21۔ اب آپ کو عام خبر سے اپڈیٹ کریں۔ گارڈن ویسٹ کے رہائشی فلیٹ میں آگ لگ گئی۔ اطلاع ملتے ہی فائر بریگیڈ کی ایک گاڑی نے آگ پر قابو پا لیا۔ حکام کے مطابق آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی ہے۔ مزید تفصیلات جانیں گے سلمان سلیم سے۔ جی سلمان، آگاہ کیجیے گا۔
बहुत शुक्रिया। देखें, ये गार्डन का इलाका है जहाँ पर एक फ्लैट के अंदर अचानक से जो है वो आग भड़क उठी और जो उसमें रिहाइश पजीर अफराद थे वो बाहिफाजत उनको बाहर निकाल लिया गया और आग लगने की वजह से जो अंदर घर में मौजूद फर्नीचर था और दीगर जो होम अप्लायंसेस थे वो जल के खाकसार हुए। इतना मिलते ही फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके के ऊपर पहुंची और एक ही गाड़ी ने ऑपरेशन करके आग के ऊपर जो है वो काबू पा लिया और कूलिंग का अमल भी मुकम्मल कर लिया। ताहम इस पूरे वाक़े के अंदर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, जबकि रेस्क्यू टीम भी मौके के ऊपर मौजूद थी। शहरियों ने अपनी मदद आप के तहत भी आग बुझाने की कोशिश की और फायर ब्रिगेड जो है वो फौरी तौर के ऊपर वहाँ पर पहुंची और उसने भी जो है वो ऑपरेशन करके आग मुकम्मल तौर के ऊपर बुझा दी है। ताहम आग जो है वो बुझ चुकी है, जबकि फायर ब्रिगेड हुकाम का कहना है कि आग लगने की वजह जो है वो शॉर्ट सर्किट हो सकती है। जी, आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट हो सकती है। सलमान सलीम, बहुत शुक्रिया आपका। आगे बढ़े रब आपको बताएं, सरकारी मुलाजमीन भी 5 माह की तनख्वाहों से महरूम। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के 300 से ज़ायद मुलाजमीन खार तनख्वाहों की अदम फराहमी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इंतज़ामिया से 1 हफ्ते में फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा कर दिया। सरकारी मुलाजमीन भी 5 माह की तनख्वाह से महरूम हैं। सिंध गवर्नमेंट चिल्ड्रन अस्पताल के 300 से ज़ायद मुलाजमीन भी खार हैं। तनख्वाहों की अदम फराहमी पर मुलाजमीन सरापा एहतजाज। इंतज़ामिया से 1 हफ्ते में फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा। आगे बढ़े और अब आपको बताएं, वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी में अंजुमन असातिज़ा और गैर तदरीसी अमले की जानिब से गुज़िश्ता 1 हफ्ते से क्लासेस का बायकॉट जारी है। असातिज़ा मुलाजमीन तनख्वाहों की अदम अदायगी और हाउस सीलिंग अलाउंस ने ना मिलने पर एहतजाज कर रहे हैं। इसके बावजूद अमली तौर पर क्लासेस जारी रहीं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे सैयद ज़ुबैर राशिद की इस रिपोर्ट में। उर्दू यूनिवर्सिटी में असातिज़ा की हड़ताल आज दूसरे रोज भी जारी। गुलशन और अब्दुल हक कैंपस के असातिज़ा का क्लासेस का मुकम्मल बाइकॉट। हुसूल तालीम के लिए आए तलबा आज फिर घरों को लौट गए। वाइस चांसलर उर्दू यूनिवर्सिटी अब तक इस्लामाबाद में मौजूद हैं। खातून रजिस्ट्रार डॉक्टर समरा जमीर का कहना है कि जामा उर्दू इस वक्त माली बहरान का शिकार है। असातिज़ा को ये बात समझनी चाहिए। वाइस चांसलर को अपने ओहदे का चार्ज संभाले हुए अभी 6 माह हुए हैं। तो ये तरीक़ाकार बिल्कुल गलत था। असातिज़ा के मुतालबे का एक तरीक़ाकार है, पुरअमन एहतजाज उनका जायज़ हक़ है, वो करें। उनके मुतालबात से जो जायज़ मुतालबात हैं उनसे भी कोई इनकार नहीं है। और जब यूनिवर्सिटी में फंडिंग होगी, क्योंकि अभी पिछले चंद सालों से नहीं है, प्रोफेसर डॉक्टर ज़ाब्ता खान शनवारी साहब अब आए हैं। हमारे यहाँ फाइनेंस का मामला पिछले चंद सालों से चल। समरा जमीर ने कहा कि बगैर इजाजत कमरे में दाखिल होने वाले असातिज़ा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। वो जो चंद अनासिर जिनके खिलाफ FIA नैब की इंक्वायरियाँ चल रही हैं, जिन पे प्लेजरिज्म चल रहा है, वो ऐसा नहीं चाहते थे, वो वायलेंस चाहते थे और उन्होंने वायलेंस किया और वो नाकाम भी हुए इसमें। और उनके खिलाफ जो भी एक लीगल एक्शन होता है वो तरीक़ाकार के मुताबिक किया जाएगा। दूसरी तरफ वाइस चांसलर ने अलामिया जारी कर रखा है कि अगर मुलाजमीन अपने मुतल्लिका शोबों में मौजूद नहीं हुए तो उनकी तनख्वाहों में कटौती की जाएगी। जबकि एहतजाजी मुलाजमीन का कहना है कि शेखुल जामिया की मंजूरी से हाउस सीलिंग के खात्मे और मुलाजमीन को जारी किए जाने वाले शोकास नोटिस वापस ना लिए गए तो एहतजाज का दायरा वसी कर दिया जाएगा। कैमरामैन अब्दुल वाहिद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21। इंसानी जिंदगियों से खेलने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी मुताबिक जिला जनूबी में गैर मयारी और गैर कानूनी खून की तजारत करने वाला ब्लड बैंक सील। दर्जनों गैर मयारी और ज़ायदुल मियाद ब्लड बैंक भी बरामद। ब्लड बैंक में सफाई का फुकदान था, गैर मयारी किट्स का इस्तेमाल। खून हासिल करने वाले अफराद से पैसे बटोरे जा रहे थे। सेक्रेटरी SBTA डॉक्टर दरनाज जमाल काजी का कहना था कि इंसानी जिंदगियों से किसी को खेलने नहीं देंगे। मज़ीद ये रिपोर्ट देखें। जिंदगियों से खेलने वाले माफिया के खिलाफ कार्रवाई। सिंध ब्लड ट्रांसफ्यूजन अथॉरिटी मुतहर्रिक। जिला जनूबी में गैर मेयारी और गैर कानूनी खून की तिजारत करने वाला ब्लड बैंक सील कर दिया गया। दर्जनों गैर मेयारी और ज़ायदुल मियाद ब्लड बैंक बरामद कर लिए गए। ब्लड बैंक में सफाई का फुकदान था, गैर मेयारी किट्स का इस्तेमाल किया जा रहा था। खून हासिल करने वाले अफराद से पैसे भी बटोरे जा रहे थे। सेक्रेटरी SBTA डॉक्टर दुरेनाज जमाल काजी का कहना था कि इंसानी जिंदगियों से किसी को खेलने नहीं देंगे।
सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड दरसी कुतब की फराहमी में नाकाम हो गया, जिसके बायस तलबा परेशान हैं और वालिदैन जगह जगह धक्के खाने पर मजबूर हैं। उर्दू बाजार में तहाल बेशतर दरसी किताबें गायब हैं। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे आयमा खान की इस रिपोर्ट में। टेक्स्ट बुक बोर्ड की नाअहली ने तलबा और वालिदैन को धक्के खाने पर मजबूर कर दिया। स्कूल खुलने के कई रोज बाद भी उर्दू बाजार में दरसी किताबें फराहम ना की जा सकीं। पहली, दूसरी, तीसरी, 5वीं जमात की रियाजी की किताब भी ना मिल सकी। 7वीं जमात की अंग्रेजी की किताब भी मार्केट में दस्तयाब नहीं। 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात की हयातियात और मुताल्ला पाकिस्तान की किताब भी छप ना सकी। चेयरमैन उर्दू बाजार ट्रेडर एसोसिएशन समेत तलबा का कहना है कि हर साल यही मसला है, चक्कर लगा लगा कर थक जाते हैं लेकिन मुकम्मल कोर्स नहीं मिलता। वजह यही है कि मैं तो सेक्रेटरी और चेयरमैन साहब से मुतअद्दिद बार राब्ता करके थक गया और ये भी पब्लिशरों को कह के कि थक गए। जो पब्लिशर कोर्ट गए थे उन्होंने बस हमारा टाइम भी ज़ाया किया, हमारा कारोबार भी दीवार से लगाया। आज उन्हीं पब्लिशर की ज़्यादातर बुक्स मार्केट में अवेलेबल ही नहीं है और ना वो छाप रहे। मुझे तो समझ नहीं पड़ रही कि कैसे मसला मैनेज करेंगे। मैं तकरीबन 5 से 7 चक्कर लगा चुकी हूँ अब तक और मुझे यही है कि 3-4 किताबें होती हैं वो नहीं मिलती और इन लोगों का तो ये निज़ाम होता है कि एंड में जाके ना बुक भी चेंज कर देते हैं। आधा साल गुजर जाता है और उसके बाद बुक चेंज हो रही होती है। वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ने भी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि डिस्ट्रीब्यूशन के इशू हैं, किताबें लेट हुई हैं, निगरां हुकूमत के दौर में कोई काम नहीं हुआ। देखिए, मैंने टीमें बना दी हैं, पूरी सिंध में फैला दी हैं, पूरे सूबे में वो टीमें जा रही हैं। वहाँ पे बुक्स लेट आए, लेट प्रोसेस हुआ। हम आए मार्च में, ये प्रोसेस अब मई में शुरू हुआ है। अब ये पहले नॉर्मली सितंबर अक्टूबर से शुरू होता है अगली साल। केयर टेकर के वक्त में कुछ भी नहीं हुआ, काम आगे नहीं बढ़ा। हम आए, उसके बाद आके फंड्स नहीं थे उनके पास, फंड्स दिलवाए, 47 लाख सेट्स पब्लिश हुए हैं। अब डिस्ट्रीब्यूशन के इश्यूज हैं, टेक्स्ट बुक बोर्ड खुद को रिस्ट्रक्चर करने की ज़रूरत है, वो मैं हम पहले ही कह चुका हूँ। सरदार शाह ने इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि इंस्पेक्शन टीमें बना दी हैं, चंद दिनों में किताबें पहुँच जाएंगी। कब आपको बताएं, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट के सेशन को शर्की में कारसाज हादसा केस की समाअत हुई। जज शाहिद अली मेमन ने भी मुल्ज़मा नताशा की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। मज़ीद तफसीलात जानेंगे जवाद आसिफ की इस रिपोर्ट में। कारसाज खौफनाक हादसे की मुल्जिमा नताशा की मुश्किलात कम न हो सकी। 5 अफराद को कुचलने वाली मुल्जिमा के रिहाई के इम्कानात कम होने लगे। अदालत ने मंशियात के मुकदमे में मुल्जिमा की जमानत मुस्तरद कर दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाहिद अली मेमन ने दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। सरकारी वकील ने बताया कि मुल्जिमा के पास बरतानवी शहरियत है, वो जमानत मिलने पर बाहर फरार हो सकती हैं। मुकामी अदालत ने रिमार्क्स दिए कि इस दलील को किसी सूरत नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वुड्सा के वकील की जानिब से जमा कराए गए नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट की कोई हैसियत नहीं। अदालत ने 2 रोज कबल वकला के दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया था। इससे कबल भी मजिस्ट्रेट की जानिब से मंशियात के मुकदमे में मुल्जिमा की जमानत मुस्तरद की जा चुकी है। पुलिस की जानिब से मुल्जिमा नताशा के खिलाफ 2 मुकदमात दर्ज किए गए हैं। मोहम्मद जवाद आसिफ, सिटी 21। कराची पुलिस मॉडर्न पुलिसिंग की जानिब गामजन। शहर फैसल थाने को पब्लिक के लिए सहूलत मरकज बनाने का फैसला कर लिया गया। मॉडल पुलिस स्टेशन का तामीराती काम शुरू कर दिया गया। SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा का कहना था कि शहरियों को मॉडल थाने में बैंक जैसी सहूलियात हासिल होंगी। कराची के डिस्ट्रिक्ट ईस्ट में मॉडल थाने के क़याम के हवाले से SSP ईस्ट डॉक्टर फारूक रजा का क्या कहना है, आइए आपको सुनवाते हैं। पर्पस बिल्ड फैसिलिटी बना रहे हैं जहाँ पे जैसे ही कोई आदमी आएगा तो उसको बहुत अच्छे माहौल में गाइड किया जाएगा। वहाँ पे जो ऑफिसर्स होंगे और जो जवान वहाँ पे लगाए जाएंगे उनको इस मकसद के लिए ख़ास तौर पर ट्रेन किया जाएगा। काउंटर सिस्टम होगा और जैसे ही वो आएंगे तो उनको टिकट इशू हो जाएगा और अपनी बारी पे वो अपना मसला बता सकते हैं। और जब उनको देख लिया जाएगा तो उसमें फिर जिस कंसर्न ब्रांच का मामला होगा तो उसकी छोटे काउंटर्स बने हुए हैं उस पब्लिक इंटरफेस में, उस काउंटर पे वो जाएंगे और जो भी मुतल्लिका शख्स होगा उससे मिल सकेंगे। सिंध हाई कोर्ट और मातहत अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों के हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन और जिना बॉयज कॉलेज के दरमियान जमीन का तनाजा। सिंध हाई कोर्ट ने चीफ सेक्रेटरी को कमेटी बनाने का हुक्म दे दिया। कमेटी में KDA, मास्टर प्लान अथॉरिटी, कॉलेज एजुकेशन के अफसरान को शामिल करने की हिदायत की गई है। अदालत ने कमेटी को मुताल्लिका जमीन की कानूनी हैसियत मालूम करने और 1 माह में कमेटी से रिपोर्ट जमा कराने का हुक्म दे दिया। सिंध हाई कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल की जानिब से 10% जरूरतमंद तालिब इल्मों को दाखिले देने की रिपोर्ट तलब कर ली। अदालत ने सेक्रेटरी प्राइवेट स्कूल को दरख्वास्त गुजारों के
स्कूलों का विजिट करने का हुक्म दे दिया। कोयटा के रहायशी का अगवा और कत्ल केस में मुल्जिम अब्दुल वहाब और नूर आगा की दरख्वास्त जमानत पर फैसला आ गया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की दरख्वास्त से जमानत मुस्तरद कर दी। जायदाद के तनाज़े पर शहरी के कत्ल केस में मुकामी अदालत ने मुल्जिम इसरार को सजाए मौत सुना दी। अदालत ने दिमाग दिए कि सिंध हाई कोर्ट की तौसीक के बाद मुजरिम को फांसी की सजा दी जाए। अदालत ने मुल्जिम पर 5 लाख रुपए जुर्माना भी आयद कर दिया। लापता अफराद केस में दरख्वास्तों की समाअत के दौरान तफ्तीशी ऑफिसर ने बताया कि GIT इजलास में शहरियों की जबरी गुमशुदगी का तयन हो चुका है। शहरियों की बाजियाबी से मुतालिक हिरासती मराकज, IGs और दीगर हुक्काम को खतूत इरसाल किए हैं। अदालत ने शहरियों की जल्द बाजियाबी के लिए मौसर इक़दाम की हिदायत कर दी है। आगे बढ़े रबाब को बताएं, मखदूश इमारतें शहरियों की जिंदगी के लिए खतरा हैं। कराची में 137 इमारतों को गैर महफूज करार दे दिया गया। जिला जनूब में सबसे ज्यादा 70 इमारतें खतरनाक करार दे दी गई। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। मखदूश इमारतें खौफ की अलामत, शहरी हो जाएं खबरदार। कराची में 137 इमारतों को गैर महफूज करार दे दिया गया। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी ने सिंध असेंबली में रिपोर्ट जमा करा दी। रिपोर्ट के मुताबिक जिला जनूबी में सबसे ज्यादा 70 इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। किमाड़ी में 50, जिला वस्ती में 28, कोरंगी में 19, जबकि जिला शर्की में 12 खतरनाक इमारतें खतरे का बाइस बन सकती हैं। बेशतर इमारतें क़याम पाकिस्तान से कबल की हैं। कई इमारतों की छतें भी पहले से गिराई जा चुकी हैं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के इंचार्ज डेमोलिशन सेल सज्जाद खान का कहना है कि कदीम इमारतों को तोड़ने से कबल हेरिटेज डिपार्टमेंट से इजाज़त तलब की जाती है, फिर उनको मुनहदम किया जाता है। जो कमेटी डिसाइड करती है कि भाई ये डेंजरस है, इसको डिक्लेयर करना, अगर वो ऑक्यूपाइड है तो उसको हम ज़िला इंतज़ामिया के थ्रू खाली कराएंगे और हेरिटेज डिपार्टमेंट को हम भी लिखेंगे और ज़िला इंतज़ामिया भी लिखेगी। उसके बाद हमारा वो प्रोसीजर कंप्लीट होगा। उसके बाद डिसाइड होगा कि इसको तोड़ना है या इसका डेंजरस पोर्शन तोड़ना है या इंतहाई डेंजरस है लोगों के लिए, तो वो फिर हम हेरिटेज डिपार्टमेंट से परमिशन लेते हैं। उनके भी बंदे हमारे साथ खड़े होते हैं, जो डेंजरस पोर्शन है वो क्लियर होते हैं। सज्जाद खान ने मजीद बताया कि अब तक 3 मखदूश इमारतों को मुनहदिम किया जा चुका है। इन इमारतों में मुकीम लोगों को शेल्टर भी फराहम किया गया है। देखिए, मसला ये है कि बिल्डिंग कंट्रोल ने और ज़िला इंतज़ामिया ने मिल के जो मेरी नॉलेज में 3 बिल्डिंगें हमने ऐसी बारिशों के दिनों में, पिछले दिनों में हमने डिमोलिश की है, लेकिन वो पूरा प्रोसीजर कंप्लीट करने के बाद हमारी डेंजरस कमेटी ने इसको डिक्लेयर किया। देखें, उनको नकल मकानी कराने के लिए हम सबसे पहले ज़िला इंतज़ामिया से रब्ता करते हैं। वो लोग उसके लिए कोई मुतबादिल जगह देते हैं। सूबाई वज़ीर बल्दियात सईद गनी भी मखदूश इमारतों को मुनहदिम करने के लिए मुताल्लिका इदारों से मदद तलब कर चुके हैं। और इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।